हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये दिस इज लेक्चर नंबर 206 और here we'll be discussing some of the points of two-hinge arch, that is miscellaneous thing. We have done with load on crown and a side of the load on the crown, and now we are taking example for multi-phased loading point load in the semicircular arch. So this is an arch A, B, E, and this is loaded like this. So this is some 10 kN, 20, 30, 40, and the angle is 30, 45 and 60, and of course crown at 90. So how you will find out the horizontal thrust force of this loading? So you can have this, just we have in lecture 205, H is nothing, W by pi sine square alpha. So this will be summation of total, this will be summation of all the loads with respect to their angles. So this will be 10 pi upon sine square 30, 20 by pi sine square 45, and this will be 30 upon pi, that is crown, and 40 upon pi sine square 60. तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इस तरह से मिसलेनियस लोडिंग अगर आपको आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आप इस फार्मूले को ध्यान दीजिए. अगर ये साइन 90 पर रख देंगे तो ये साइन स्क्वायर 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो जिसकी वजह से कोई भी एंगल है इस फार्मूले को आप कॉमनली यूज कर सकते हैं. तो यहाँ हमने यूज किया है जिससे ये 23.07 है. तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कर लेंगे. अब आपकी बात आएगी, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस फॉर यूडीएल. तो यूडीएल क्या हो सकता है कि ये पूरे इसके, दिस इज सेमी सर्कुलर आर्च दे रहे हैं, आई विल टेक पैराबोलिक आल्सो, but first we are studying the semicircular arch. So semicircular arch is there and loading is throughout the span, that is W per unit run. You can say W kilometer per meter or something like that. So we have to evaluate, find out the horizontal thrust. Now you see here we have taken a section, you can say at some point, this is the X point, taken there, this is theta angle, and we have taken section here to find out the moment. So ignoring, we can have the reactions because total load is W into 2R, so reaction will be symmetrically WR. Okay, and we have to find out the horizontal thrust. So first of all you have to find out the moment at X without including H. So this will be your WR, R1 minus cos theta, that is WR is loading, and the distance is R1 minus cos, because this is total R and this horizontal component is R cos theta. This horizontal component is R cos theta, this one. Time and again I am saying this up to here, this is R cos theta. So R cos theta में से R में से R cos theta घटा देंगे तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी. उसके बाद लोडिंग है आपकी, लोडिंग कितनी है, यहां से यहां तक है, दैट इज ये WR1 माइनस cos थीटा. तो WR1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, इसलिए WR स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर बाई 2 कर दिया. और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, आप देख लीजिए स्टेज वाइज, तो WR स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया. दिस इज ओके. तो नाउ H बराबर क्या होगा, H इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 my ds डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई y स्क्वायर ds, और y क्या है, r sin थीटा होगा, और आपका y को r sin थीटा यूज कर सकते हैं. तो नॉमिनेटर लेकर के चलते हैं पहले ऊपर का. तो दिस इज योर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 my ds. तो यहाँ हमने वैल्यू रख दिया है, दिस m इक्वल्स टू योर दिस WR स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर y r sin थीटा और ds r d थीटा. तो ये हमारा है WR टू द पावर 4 0 पाई बाई 2 साइन क्यूब डी थीटा की जो वैल्यू हमको निकालनी है. हमने यहाँ लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर निकालेंगे साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे. ये यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर हायर सेकेंडरी
times, that is in intermediate or something you done in UP board or in CBSE. So you have factored sin square theta, sin theta, d theta को अलग अलग कर दिया, तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर sin थीटा d थीटा हुआ, cos थीटा को u कर दिया तो du by d थीटा माइनस sin थीटा हो गया, इसलिए du sin थीटा d थीटा हो जाएगा, इसलिए sin थीटा d थीटा इक्वल टू माइनस du हो जाएगा। और हमने यही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई इंटीग्रेशन में 1 माइनस u स्क्वायर माइनस साइन, दिस इज योर माइनस साइन, सो दिस इज योर माइनस साइन, दिस इज माइनस, और इसको चेंज कर दिया तो u इधर आ गया, u माइनस u स्क्वायर माइनस साइन, तो u स्क्वायर बाई 3 माइनस u हो गया। ये u इक्वल टू कॉस थीटा, u स्क्वायर अपॉन u, तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 में करेंगे तो 2/3 आता है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, 2/3 आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, WR/4 2/3 कर दिया, तो WR/4/3 आपका आ गया। दिस इज WR/4 into 3 आ गया। अब हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट आपका है जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन y² into ds 0 टू π/2। y बराबर आपका है r² sin स्क्वायर थीटा और ds है आपका r d थीटा। ये है 0 टू π/2। ये थोड़ा सा और मिटा देते हैं इसको। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज हो जाएगी r³ बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर थीटा इंटू थीटा। आप पहले भी देख चुके हैं, ये π/2 और 0 के बीच में है, तो ये हो जाएगा r³ और ये sin स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, दैट इज 4/π/4, दिस इज कमिंग π/4, so this is your π/4 for this value. We have already in previous article we have done, yeah, otherwise you can do it also with the help of cos 2 theta and something like that. So this is your pi r³ upon 4. Now your integration m y ds upon integration y square ds 0 to π/2 0 to π/2 equal to h. So h equals to your this value WR4 upon 4 divided by 3 divided by pi r³ upon 4. So this will be your WR³ upon 4. This will be 4/3 WR. r³ कट जाएगा, this will be your h. h equal to this will be your h is equal to 4/3 WR। तो यहाँ पर इस तरह से हमने थोड़ा प्रैक्टिस करके ये चीजें की हैं, आप इसको जहन में रखिएगा। अगर यही चीज अगर हाफ लोडिंग में आ जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हाफ लोडिंग को हाफ में कर देंगे। तो यहाँ पर इफ हाफ लोडिंग आप ट्राई करिए, ट्राई फॉर हाफ स्पेन you will find h equal to इसका हाफ यानी 2/3 WR होगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, you will find it. So this will be 2/3 W/R. Because this will be for 2h, if 4 is 2h तो हाफ इज for 1/2 हो जाएगा। तो इस आर्टिकल की मदद से हाफ स्पैन के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।